Shabnam ma'am, shall we start? Yes, we can start with the session. They will join in the meanwhile. Okay, sir. Sir, shall we start? Sure. Yes. A very good afternoon to everyone. We have joined again. We have resumed back for the post-lunch session, and today we have amongst us the expert speaker, Mr. Vineet Raj Kapoor. So let me introduce you to the expert speaker. Mr. Kapoor is the founder Skill. Sir is the Dean at Chitkara School of Arts and Design, Chitkara University. He's a knowledge partner in UI UX and game design with TCS and he is founder advisor to Skill, which is an upcoming design school at Chandigarh. Sir is India Skills expert for industrial design technology to mentor and train the Indian team for World Skills. Sir is also jury at Serious Play Awards, University of Central Florida, Orlando, USA. Sir has been jury at Walton QS and design mentor at Smart India Hackathon in the past. Sir has been a rare academician who is equally aware of the business aspect of the entertainment business as well. Sir has organized industry summits and successfully led the Indian delegations of filmmakers, distributors, animation and gaming studios to ACE Fair, which happen to have every year in September. Sir is equally well connected to artists and students who want to join the creative stream and has been guiding the Unrelentlessly. Sir has spoken at various conferences and seminars in past, some of which were held at Konkuk University, Seoul, then Punjab University, GNDU, Chitkara University, Maharaja Agrasen University, Kurukshetra University, Desh Bhagat University, to name a few. Besides this, Sir is also a very popular author. He has authored one fiction book and one non-fiction book on chess, which is basically on the unraveling the life guide. So we are very delighted to have you here, sir. And over to you, sir. Thank you. The pleasure is mine to have the honor to address upcoming and established educationists. And I do hope to share points that maybe can help you deal better with students, as especially with innovators and entrepreneurs. Because I am also an educationist and I make it a point to create some extra space for entrepreneurs and innovators. Only then we can take the country ahead so that they can create jobs. So empathy and design was today's topic. I'll just rush through a few slides because there were some introductory slides, because at some places you need to show them, but I don't think here it is necessary. Just a second. I think the slide movement will not work in this mode. Just a second. OK, so I'll just rush through these. These you have seen. There are some just pictures of this is Skill, and this is from the delegation in South Korea. Every year that we take, and at the top is the lectures that I typically take at Konkuk University. And this is the TCS Ion lectures that they, I think they have a network through which they float them in colleges. So, and these are the books that I've written. I've taken a very different view on chess. So this is about using chess to understand life. A few quotes here and there, and some articles. And empathy is a very complicated word in the sense that, OK, we have seen this. I think everyone has seen this sometime or the other. Are people able to respond? Like they have their mics? Yes, sir. Yes. OK, means at least if somebody says that they've seen this, I can move ahead. Like, have you seen this model of design where empathize, define, ideate, prototype, and test?
No? Yes or no, please? If anybody can just give a very quick response. Typically, this is a model which is taught at most design schools where empathize is the first step. So I kind of don't agree to this model because empathize cannot be a step. It is a way of living. That is the point I want to make today, and I want to showcase it through certain narratives or certain incidents from some known people, so that you will understand the word empathy in a very different perspective, and it will help you solve problems. So otherwise, there is. Let us take a look at the first. Okay, you can say these are my guests today who will explain you what empathy is. So this is Walt Disney. Maybe some of you recognize him. So of course, there's this quote by Walt Disney: Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world. Right? So, and let us see what Walt Disney did to use empathy in his social. Going to look at four different aspects of his journey. One is mini train. You may or you may not have seen this, but like there was a mini train in their office. So whenever anybody wants to take a break, they can just climb on the mini train, which is going around Disney, the Disney Studios. This is not Disneyland. When Disney Studios was formed, Disneyland was not there. So maybe Disneyland idea also came out from this. So by this, what happens is Disney people were working on cartoons for children. So they were allowed to be children for a short time during the break, whenever they want. They just went around like children sitting on the train. So this was his way to bring in empathy for the children, so that the stories that they tell were able to connect to people. So here is a layout of Walt Disney Studios. So the train goes around that. Next, this is a very interesting like example. The burger and design. Now, what happened was, let us take a look at one small example of how design thinking happens through empathy. Now, if I give you an assignment that, okay, this is the layout of Disneyland, and please, there are 1,000 dustbins, and you please place these dustbins around Disneyland. So most of us engineers, I am also an engineer, so most of us engineers, they will first break the entire map into sections, and at all of the, yeah, somebody's. Yes, sir. I have muted them. You can continue. Sir, you're on mute mode. How did it happen? Okay, you muted everybody, so I also got muted. Anyway, now you can hear me, I suppose. Yes, sir. Okay, so what an engineer does is, suppose they are given a chessboard, so they will create 8 lines horizontal and 8 vertical, and then they will have all those meeting points. They will have 64 squares, so they'll place 64 dustbins, and that's the way engineers work, right? So equidistant dustbins, that is the answer as per engineers. But let us take a look at how empathy can be like involved in this solution. What Disney did was, he would go like he would go around Disneyland, one section of the Disneyland every day. So he will go to any food stall, maybe burger stall, and buy a burger. And then he will start moving around, looking at rides, taking rides and stuff. So whenever he would finish his burger, he would look around and then ask for a spot, and then ask for a dustbin to be placed there.
So do you understand the difference in the empathy and the non-empathy style of solving a problem? In the non-empathy style, in engineering or mathematical style, you place them equidistant. But from an empathetic style, you know that people will only create garbage when they buy food or something. So you have to organize the solution as per the people's usages or habits and not as per mathematics. So suppose for 1 kilometer there is no food stall, there will be no litter. People will not be throwing things around, so you maybe just need one dustbin in that whole zone. Whereas there are more food joints, so you need more dustbins. So that was the way Walt Disney solved problems, through empathy. And if somebody keeps on responding, I'll be so happy. I don't know whether it is a norm, but I love it when people keep on responding and interacting. You can keep asking questions whenever you feel like, because these are so interesting things. So I don't want them to just pass by. I know people have had food and all, and it is really difficult to concentrate after having food. So let us look at impossible rides. So when Walt Disney thought of Disneyland, so he was thinking of creating rides. He was just imagining very wildly. So what happened was, his engineer said that, boss, this ride cannot be created on most of the rides. So what happens is, like, as a owner of a company, typically you have to listen to your engineer. Say that this will be unsafe. These एक ship होता है ना जो झूलता रहता है. So they said this will be unsafe. Many people will die and so on. Roller coaster जो भी उनके मन में आया. इससे पहले कोई झूले नहीं बने थे बड़े एडल्ट्स के लिए. So जब इंजीनियर्स ने मना कर दिया, so what happened was that, like, just think like what you would do if you are Walt Disney. So 99% will accept and think of something else. But Walt Disney was different. He was, I think, 10th or 12th pass person with more education beyond that. और कार्टून बनाने बैठा था, और वो भी बनाते बनाते 10-20-30 साल हो गए थे. Now he was thinking of something else. वो बैंक्स में गया तो उन्होंने लोन भी मना कर दिया कि ऐसे झूले वूलों के लिए हम लोन नहीं देंगे, और इंजीनियर्स ने मना कर दिया कि हम ये बनाएंगे ही नहीं झूले. सो अब इसके सामने चारा बहुत ज्यादा नहीं था, तो उसने वो किया जो बहुत रेयर बंदे कर सकते हैं, बहुत रेयर लोग कर सकते हैं. And started studying engineering on his own. He studied structural design, strength of materials, जो भी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने ये सब पढ़ा है. तो ये सारी चीजें पढ़ी, और फिर अपने इंजीनियर के सामने बैठ गया, बॉस कैसे नहीं बन सकता, मुझे समझाया जाए. एंड दैट इज हाउ फाइनली ये राइड्स बनी. लेकिन इसके ऊपर भी ये तो 99% लोग हैं जो ये करेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद 99.9% लोग ये नहीं करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ. इसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने, जब वो झूला बन गया और झूले की पहली बार बत्ती जलाने वाले हैं, ऑन करने वाले थे झूले को, तो वॉल्ट डिज्नी ने कहा सबसे पहले, जब बात हुई कि पहले कौन बैठेगा, उसने कहा मैं बैठूंगा. सो दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस इन हिज कैलकुलेशंस. ये सारी चीजें हम जोड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं. मेरे को मतलब एक एग्जांपल वॉल्ट डिज्नी का ही काफी है एम्पैथी सिखाने के लिए. वैसे मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं, बट आई वांट कि इन एग्जांपल्स में से जो वॉल्ट डिज्नी बड़े क्लियर हैं और इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, तो इनमें जो पूछना चाहिए आपको दिल करता हो जरूर पूछिए. Anybody has any question? I hope ज्यादा बोरिंग नहीं हो रहा है. अच्छा, इसके उनका आखिरी सपना एपकॉट, एक तमन्ना थी जो काफी लोगों के मन में होती है. अगर वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कल की दुनिया को कुछ देके जाना है. वॉल्ट डिज्नी ने कहा चलो बेस्ट डिजाइनर्स को बिठाएं और कल की दुनिया की सिटी कैसी होनी चाहिए उसका डिजाइन किया जाए. और उसमें भी वो खुद ही लगे हुए थे, खुद उन्होंने बड़ी ड्राइंग्स बनाई और बहुत कुछ बनाया. वो उस ऐसे एक नक्शे के सामने खड़े ऊपर उनकी फोटो है. ये नक्शा सच्ची बोले तो वॉल्ट डिज्नी के अलावा किसी को कभी समझ नहीं आया आज तक कि क्या वो चाह रहे थे.
क्योंकि ये शुरुआत करी उन्होंने एपकॉट की, विच इज एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो, और इसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई मिडिल में इसके। तो कहा जाता है कि एपकॉट बन तो गया, लेकिन वो नहीं बना जो वॉल्ट डिज्नी कर सकते थे। तो एपकॉट एक बना है, बहुत अच्छा है, कल का ही एक शहर है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा जहां वॉल्ट डिज्नी ले जा सकते थे, और वो ले जाते। सो दैट वाज हिज विजन ऑफ। तो वही है कि एम्पैथाइज करना इसमें जरूरी होता है। आप अगर यूजर को पूरी तरह समझ रहे हो, पूरी तरह उसके उसी की तरफ से सोच रहे हो, तभी आप बना पाते हो इस चीज। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल इसका समाप्त होता है। मैं और एग्जाम्पल्स जरूर डिस्कस करूंगा, बट ये एक प्रमुख एग्जाम्पल है। इफ यू वांट, प्लीज गो अहेड, कीप आस्किंग मी समथिंग। सो उनका कहना था, व्हेन यू आर क्यूरियस यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू। लेट अस मूव टू अनदर पर्सन, डेविड ओगिलवी। नाउ डेविड ओगिलवी का नाम एडवर्टाइजिंग में जाना जाता है एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडवर्टाइजर्स ऑफ द वर्ल्ड, गॉडफादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कई लोग कहते हैं। और देखिए लिख वो क्या रहे हैं, जो उनका सबसे फेमस कोट है, वेल रन रेस्टोरेंट इज लाइक ए विनिंग बेसबॉल टीम, इट मेक्स मोस्ट ऑफ एवरी क्रू मेंबर्स टैलेंट एंड टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी स्प्लिट सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू स्पीड अप सर्विस। तो बिगेस्ट एडवर्टाइजर रेस्टोरेंट के बारे में क्यों लिख रहा है? अगले स्लाइड, क्वालिटी थ्रू एम्पैथी। हुआ क्या था, डेविड ओगिलवी की पहली नौकरी एक रेस्टोरेंट थी, तो उन्होंने एक चीज जरूर ऑब्जर्व करी थी जो काफी लोग मिस करेंगे। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का ओनर जो है किचन के बगल में ही खड़ा रहता था हमेशा, और हर आने वाली डिश जो अंदर आ रही है रेस्टोरेंट के, उसमें से एक अलग स्पून नया लेता था और थोड़ा सा टेस्ट करता था, फिर उसको आगे जाने देता था। तो उसका क्वालिटी से जो लगाव है वो वॉल्ट डिज्नी, डेविड ओगिलवी को बहुत पसंद आया कि ये आदमी एक भी खराब डिश नहीं खिलाएगा, इसने डिसाइड कर लिया है। तो रेस्टोरेंट इसीलिए चल रहा है। 9 साल उन्होंने यहाँ नौकरी करी, और वो बोलते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग का सब कुछ इसी रेस्टोरेंट से सीखा है। तो अगेन ये एम्पैथी विद द जो उनके विजिटर है रेस्टोरेंट के, उनके साथ एम्पैथी थी, जिससे कि क्वालिटी अचीव करी उन्होंने। ली कॉर्बुजियर, इसको तो शायद काफी लोग जानते हैं। इन्होंने इंडिया में चंडीगढ़ बनाया था। फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं, बहुत फेमस है, और उनका बड़ा सिंपल ही कोट है, आई प्रेफर ड्राइंग टू टॉकिंग। वो कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा क्या करना है, क्या बनाना है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा लेसन भी है हम अपने बच्चों के लिए कि भैया समझाओ मत, दिखाओ, बना के दिखाओ, प्रेजेंटेशन दो, समझा पाओ through your visuals. So that is what so इनका एग्जाम्पल एक मैं बताऊंगा। चंडीगढ़ आप में से कोई आया है कभी? जी कोई तो आया होगा। इफ यू कैन जस्ट से यस आई डिड। ये चंडीगढ़ का टिपिकल सेक्टर लेआउट। मौका नहीं मिला? ओह, आई होप ये मौका जल्दी मिलेगा, यानी तो हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ होगा तो जरूर आई विल वेलकम यू। तो क्या है चंडीगढ़ के सेक्टर, मैं अब समझा देता हूं, क्योंकि अभी अगर आए नहीं है तो शायद ना पता चले। चंडीगढ़ का ये एक टिपिकल सेक्टर ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस, सो 2:3 की रेशियो में, उसकी विड्थ 3 है और हाइट 2 है, समझ लीजिए। मतलब 0.8 किलोमीटर टू 1.2 किलोमीटर इज द टिपिकल सेक्टर। अब उसमें मजा क्या है, कॉर्बुजियर ने क्या किया कि हर सेक्टर को उसने सेल्फ सफिशिएंट बनाया। हर सेक्टर के अंदर 4 भाग हैं, ए बी सी डी। तो मजे की बात है, जो नॉर्थ वेस्ट है वो ए होता है हमेशा, नॉर्थ ईस्ट जो है बी। तो यानी कि यहाँ ए बी सी डी, तो ऐसे करके, यानी कि आंख बंद करके आप बता सकते हो सेक्टर का ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, हर सेक्टर का सेम है। फिर दूसरी चीज,
सेक्टर के मिडिल में एसेंशियल सर्विसेज, या अगर वहां उस सेक्टर में कुछ और है तो वो होता था। साइड में मंदिर और ये सब या कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, और इसके पीछे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे उनके अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे मंदिर है तो मंदिर में कोई भी फंक्शन होगा, लोग आएंगे, बाहर कारें खड़ी करेंगे, तो कभी भी रेजिडेंस के सामने कारें नहीं खड़ी होती, बिकॉज वो बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों चीजें। कॉलेजेस ये सेंटर वाले एरिया में है या साइड वाले एरिया में है, तो कहीं पे भी मिक्स मैच जैसा नहीं है, रेजिडेंस बिल्कुल अलग अलग रखे गए, और बीच में मार्केट होती है जहां पर ऑल ऑफ द 4 parts of the sector are able to access that market. तो मजे की बात है कि कोई बुजुर्ग है, सपोज 60-70 साल का हो गया है, वो रिटायर हो गया है, तो उसको सेक्टर से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, उसको हर चीज सेक्टर में मिल जाएगी। एक डिस्पेंसरी भी सेक्टर में होगी, तो उसके मैक्सिमम नीड सेक्टर के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज, सेक्टर्स की एंट्री मिडिल से है, किनारों से नहीं है। जैसे हर शहर में होते हैं, किनारों से एंट्री हो जाती है, जो कि आसान और सहूलियत भी लगती है कि किनारे से एंट्री होना। मोटर बाइक या कारें तेजी से चला रहे हो, कभी भी सेक्टर के अंदर से शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो उन्होंने सेक्टर का डिजाइन ही ऐसा किया कि, यानी कि आप देख रहे हो कि कोई भी सीधी रोड सेक्टर के थ्रू नहीं निकल रही, तो शॉर्टकट लेने वाला यानी कि स्पीड में जाने वाले बंदे को कोई भी इंसेंटिव नहीं है सेक्टर में एंटर करने का, तो बच्चे अपने आप सेव हो गए। मेन रोड जहां है बस हर घर की बैक है, फ्रंट है ही नहीं मेन रोड। तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ ये शहर है। एम्पैथी है, उनको यूजर को उन्होंने समझ लिया कि यूजर क्या क्या चाहेगा और उसकी क्या क्या तकलीफें होंगी, और उनको सॉल्व किया। और इंटरेस्टिंगली इवन पंचकूला, मोहाली ने इसको कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं कॉपी हुआ उनसे। इस कॉपी के पीछे सिंपल लॉजिक थे, लेकिन वो भी अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट वो नहीं कर पाए। इवन सेक्टर ए में घरों के नंबर कैसे होंगे, कैसे घर आगे बढ़ेंगे, वो सारा कुछ डिफाइंड था। तो बहुत अच्छे से एम्पैथी के थ्रू यूजर एक्सपीरियंस इन्होंने डिजाइन किया। यूजर यानी कि जो सिटीजन है उनका एक्सपीरियंस। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी, ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पैथाइजर भी हैं और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर भी। इन्होंने सबसे पहला तो इनका एम्पैथी का आप एग्जाम्पल ये जानते ही हैं। पहली बार जब चंपारण में गए किसानों का की तरफदारी करने, तो उन्होंने अपने कपड़े वहां पे त्याग दिए कि भाई पहले किसान के जैसी जिंदगी जी पाए, समझ पाए उनको, तो वही उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे शर्ट पैंट में उनके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। उन्होंने पहले तो बी लाइक द यूजर किया, और वक्त के गुजरते गुजरते वो यूजर ही बन गए। जो सॉल्ट सत्याग्रह में हमने देखा कि उन्होंने कहा नमक बना के देखते हैं ना, नमक का अगर उन्होंने कानून बनाया है तो एक बार बना के देखा जाए कि क्या है ये नमक बनाना। तो वहां वो डांडी मार्च वाज बिकमिंग द यूजर। सो बाहर मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर बैठकर झंडे लेकर वो वाला उनका तरीका नहीं था। उनका तरीका था कि अब यूजर बन जाए, उसको समझ लें, उसकी तरह बिहेव करें, तो हम सही तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो वो ये नहीं करते थे कि प्रॉब्लम अंग्रेज है, वो कहते थे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। रूलर अंग्रेज तो इंडियन प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो ये इनके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने सिर्फ 2 मेजर वंस लिए हैं, बट इन्होंने हर समय एम्पैथाइज करके किया है कार्य। और इनफैक्ट इन्होंने इंस्पायर किया है स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को, जो बाद में कितने सारे आए हैं, ओबामा, मतलब बहुत लोग, नेल्सन मंडेला, इनका नाम लेते हैं कि इनसे सीखा है कि कैसे लाइफ को जीना है या कैसे इवन बिजनेस को चलाना है स्टीव जॉब्स ने। तो इसीलिए स्टीव जॉब्स जब आगे बढ़े तो अपने एड में उनको और कुछ नहीं समझ आया कि गांधी जी का ही बी डिफरेंट स्लोगन के साथ यूज किया जाए। रे क्रॉक, इसका नाम शायद ना पता हो बट मैं बताता हूँ। मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है जहां पे बर्गर आप खरीदने जाते हो, तो वो कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक रे क्रॉक है और एक डिक मैकडोनल्ड है। बात क्या हुई कि डिक मैकडोनल्ड का एग्जांपल अभी दे रहा हूं।
रे क्रॉक का भी नहीं दे रहा हूं। डिक मैकडोनल्ड है जिन्होंने मैकडोनल्ड को एक शक्ल दी। रे क्रॉक ने तो उस शक्ल को दुनिया भर में फ्रेंचाइज की तरह सेल किया। तो उनका कंट्रीब्यूशन रे क्रॉक का है फ्रेंचाइज सिस्टम, जिसको उन्होंने परफेक्ट किया। लेकिन मैकडोनल्ड की असली कहानी जो है वो डिक मैकडोनल्ड ने क्रिएट करी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक कस्टमर को समझा। हम देखते हैं कैसे समझा। एक कस्टमर का क्या होता है, जब हम जाते हैं एक रेस्टोरेंट में या फूड जॉइंट में, तो हम 4-6 लोग चले गए, हो सकता है कभी कार में बैठे हुए हैं, अगर बाहर से पिक करना है, और अगर अंदर भी गए, अंदर जाते ही हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते ही फिर हो जाता है शुरू इंतजार। ये डिक मैकडोनल्ड या रिचर्ड मैकडोनल्ड को बहुत अखरता था कि कस्टमर का इंतजार वाजिब ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए उसको इंतजार। तो कैसे करें कि ये सारी चीज जो है फास्ट हो सके। तो उन्होंने एक निर्णय लिया। ही डिसाइडेड दैट 30 सेकेंड्स में कस्टमर के हाथ में वो चीज होनी चाहिए जो वो मांग रहा है। तो विच मीन्स हर समय चीजें पीछे सेमी फिनिश कंडीशन में तैयार होती जा रही हैं, ताकि फिनिश कंडीशन में लाने में 30 सेकेंड लगे सिर्फ। तो ये अचीव कैसे किया? उनके यहाँ बहुत मतलब मशीनीकरण किया, ऑटोमेशन में बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसमें भी स्टैंडर्डाइज करा। स्टैंडर्डाइज करने के अलावा सबसे बड़ी बात ये करी कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी को डिजाइन किया। उसके मैं कुछ स्क्रीनशॉट लाया हूँ। एक मूवी आई थी फाउंडर, अगर आप नेट पे देखना चाहें तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो किस तरह उन्होंने डिजाइन किया था, उस मूवी के स्क्रीनशॉट्स है। पहले तो मूवी में से ही है क्लिप। मतलब उन्होंने एक एक चीज के इंस्ट्रूमेंट बनाए कि अगर 5 जगह सॉस गिरनी है, एक एक बूंद, तो वो मशीन से गिर रही है, ताकि ठीक जगह से फैल रही है। जो रखना है गिना हुआ है, क्या रखना है, कितना रखना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अगर इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड एक मिनट खोलता हूँ, बिकॉज हाँ, ओके, यू आर एबल टू सी दिस। एक मिनट इसको, ओके। इस तरह उन्होंने एक बास्केटबॉल कोर्ट लिया, एंड देन ही स्टार्टेड ड्राइंग द एंटायर रेस्टोरेंट ऑन दिस। फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उसमें खड़ा किया कि आप परफॉर्म करो वो फंक्शन जो आप करते हो असली रेस्टोरेंट में। और उसके बाद उन्होंने वर्कआउट किया कि जैसे ये वाला पहले उन्होंने लेआउट बनाया था, फिर उसको उसमें से उनको गलतियां समझ आई, फिर ये अगला लेआउट बनाया, फिर से वो वाला प्ले किया, तो जिसको हम कहते हैं सिमुलेशन। सिमुलेट कर करके ये किया, फिर नहीं जमा, फिर एक और डिजाइन बनाया। तो करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा करते हुए उन्होंने अचीव किया कि कैसा रेस्टोरेंट का लेआउट होना चाहिए। तो दिस अगेन, व्हेन यू वांट द यूजर टू हैव व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट, तब आप इतने सारे जद्दोजहद करते हो जस्ट एक रेस्टोरेंट का लेआउट बनाने में। अदरवाइज तो क्या, आप एक आर्किटेक्ट को दोगे, वो कहीं भी जब खूबसूरत लग रहा है वैसा बना देगा, वो ये नहीं देखेगा फंक्शनैलिटी में खूबसूरती अड़ रही है अगर। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, राइट। तो इसके अगला देखते हैं। स्टीव जॉब्स, ऑफ कोर्स, इनका नाम हमेशा यूजर एम्पैथी में बहुत आगे लिया जाता है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में इनके भी एक महारत थी। सो ही सेज डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। और ऑल्दो इन्होंने तो बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, लेकिन प्रमुख वाले देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने सिंगल बटन माउस इंट्रोड्यूस किया था जब ये शुरुआत हुई। तो वो
चाह रहे थे कि एक ही उंगली यूज करते हुए पर्सन कर पाए हर काम। उसके बाद जो इनकी मेजर चीज थी, जब माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीशन आया तो इन्होंने अपने कंप्यूटर में फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस किए। उस समय तक सोचा जाता था फॉन्ट की क्या जरूरत है, आपने कंप्यूटर से प्रोग्राम लिखना है, एक फॉन्ट डिफॉल्ट हो उससे प्रोग्राम लिख लोगे। बट इन्होंने जब फॉन्ट दिए तो इनका कंप्यूटर डिजाइनिंग के लिए यूज होने लग गया, और देयर ऑनवर्ड्स हमेशा ही एप्पल के कंप्यूटर जाने जाते हैं टू बी ए डिजाइनर्स कंप्यूटर एंड टू बी बेटर कंप्यूटर्स, बिकॉज विथ फॉन्ट वी आर एबल टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स बेटर। तो हमें कई बार लगेगा कि इस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें आपको फॉन्ट बताने के लिए फॉन्ट को बोल्ड किया है, तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें इटैलिक करी है, कुछ स्ट्रेट है, तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती है, तब जाके चीज हम इजीली कन्वे कर पाते हैं। देन इनका इनोवेशन आया था आईपॉड। उस समय तक क्या था कि ऑलरेडी हम कंप्यूटर पर गाने चला पा रहे थे कॉपी कर करके। दूसरी तरफ कैसेट प्लेयर सबको पसंद था और लोग लेके घूमना चाहते थे। बीच में एक और मेमोरी, इन्होंने इन चीजों को जोड़ा कि मेमोरी भी है, गाने डाउनलोड भी हो सकते हैं, और मूव में भी मोबिलिटी भी मिल सकती है। और इन सब के साथ उन्होंने काफी लाइक टाइप्स किए, बिकॉज इसको सबसे बड़ा अपोजिशन इसका था म्यूजिक कंपनीज का, कैसेट बनाने वाली कंपनी, सबका अपोजिशन था कि ऐसे तो लाइक कैसेट ही नहीं बिकेंगे, तो उन्होंने कहा आपको रॉयल्टी गाने पे मिल जाएगी, हर गाना प्ले होने पे आपको पैसे आते रहेंगे। तो मेहनत काफी लगती है उसके पीछे भी, देखने में लगता है कोई एक सिंपल सी मशीन है, तो वो सारी मेहनत करी और सडनली इंसान अपने गाने साथ लेके घूमने लगा। जो पहले वॉकमैन में होता था, लेकिन आपको कैसेट खरीदने पड़ते थे, जो बहुत कॉस्टली एक्सरसाइज थी। और आज तक उसके बाद से दुनिया मुड़ी नहीं है, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर सब रिडेंडेंट कर दिए इस इनोवेशन ने। फिर आई आखिरी और सबसे फेमस उनकी इनोवेशन, आईफोन। अब आईफोन इज जस्ट अ फोन, बहुत लोग ये बोलेंगे ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ फोन, बट इसमें भी उन्होंने सिंगल बटन माउस की तरह सिंगल बटन रखा नीचे। फिर उन्होंने एक फैसला लिया था जो शायद आप जानते हो कि नहीं, 5 इंच से बड़ा साइज नहीं होना है, ठीक है। लकीली उनके जिंदा रहते तो 3.5 इंच से ऊपर नहीं गया था, बट उसके पीछे उनका लॉजिक बड़ा क्लियर था। उन्होंने यूजर को देखो कितना डिटेल में समझा, अंडरस्टूड द यूजर लाइक एनीथिंग, लाइक a user may want to use this phone with only one hand while doing another task with another hand. यानी कि आप एक हाथ में किताब पकड़ी है, आपका फोन आ गया है, आपको मैसेज भेजना है, आप एक ही हाथ से वो मैसेज पूरा टाइप कर पाओ और भेज पाओ, और दूसरा हाथ छोड़ने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है और भी कोई काम ऐसा जरूरी है जो आपने पकड़ा सकते, किसी के लिए सीढ़ी पकड़ी है, बंदा छत पे गया है, आप सीढ़ी पकड़े खड़े हो, आपको खाली बैठे हो और फोन भी यूज कर रहे हो, तो वो सोचते थे कि दोनों हाथों का इस्तेमाल करना इलॉजिकल है फॉर ए फोन। तो उन्होंने उसके लिए ये देखा कि अंगूठे का ट्रैवल 5 इंच क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फैसला किया हुआ था कि 5 इंच से बड़ा फोन नहीं बनेगा। तो ये फैसला सिर्फ उनके डेथ तक टिका रहा, क्योंकि बाद वाले लोग अगेन नहीं समझ पाए उस फैसले की अहमियत, और उन्होंने बड़े बड़े फोन बनाने शुरू कर दिए। जबकि स्टीव जॉब्स और राइट के बेस्ट है अगर एक हाथ से बंदा यूज कर पाए, उसको और चीजों की जरूरत ही ना हो। ये उस जमाने की बात है जब टच स्क्रीन भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तब से शुरू हुआ उनका फैसला। उसके बाद पहले तो बटन से हो रहा था नीचे, उसके बाद आईफोन से ऑफकोर्स टच स्क्रीन आए, तो उन्होंने टच स्क्रीन का पूरा इस्तेमाल करने के हिसाब से ही डिसीजन लिए। सो दैट व्हाट स्टीव जॉब्स डिड। So many interesting innovations that people who can empathize have taken before this, ठीक है ना? So I think with this I've like finished with the content of understanding of empathy through our leaders. So मैं ये समय रखता हूँ अब डिस्कशन के लिए। So I would need some participation because otherwise हम ये सारा हजम नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सुनने बड़ा अच्छा लगता है लेकिन हजम होना बड़ा जरूरी है. सो काइंडली आस्क एंड डिस्कस थिंग्स. जी, मैं शेयरिंग को बंद करता हूं ताकि हम आराम से इसको डिस्कस कर पाए. यस, प्लीज. Yes, participants, please discuss if you have any queries, if you want to ask anything. उसमें मजा आएगा. मतलब प्लीज ये मत सोचिए कि बोरिंग होता है. You all are teachers and have students and you would always like के discussions हो, right? इसमें से कोई भी एग्जाम्पल और डीप में समझना चाहें. जी, Yes, sir. I would want to take the discussion further. I want to ask. जी, जी, Sir, actually, you talked about empathy. And जी, जी, in empathy, the examples which you gave of the restaurant, that is McDonald's, and then about जी, जी, the recent example. So everywhere we talked जी, about user experience, जी, जी. about the Apple mobile phones as well. So हाँ जी, हाँ जी. yeah, empathy is nothing but thinking about your users, right? Am I in the right राइट जी, direction? बिल्कुल जी. तो मुझे ये पूछना है कि कोई भी डिजाइन, मतलब एक डिजाइन हम कहते हैं कि गुड डिजाइन है, तो क्या उसके जी, लिए हमेशा यूजर एक्सपीरियंस कितना मायने रखता है, मतलब कितना जी, जी, इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल. ये बेसिकली देखिए, एक डिजाइन जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया ना कि वॉल्ट डिज्नी ने जब डस्टबिन प्लेस किए, सो एक मैथमेटिकल आंसर बड़ा इजीली निकलता था कि डस्टबिन आप मैथमेटिकली प्लेस कर दो. आपको जितने भी डस्टबिन प्लेस करने हैं, 1000 प्लेस करना है, तो इक्वी डिस्टेंट रखो. तो एक इंजीनियर टिपिकली ऐसे सॉल्व करता है जब वो यूजर को नहीं बीच में लेता. सॉल्यूशन तो है लेकिन वो वर्केबल नहीं होगा. राइट. सिंपल चीज को ये ऐसे डिस्कस करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है गलत होगा, बट लेट अस डिस्कस समथिंग. जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में कई फैसले थे. जी, जी, डॉक्टर निर्मला जी, विल डिस्कस दैट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो जैसे ही मैं अभी ये बताता हूँ तो उसके बाद विल डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है. तो पहले मैं वैक्सीनेशन को जस्ट एज एन एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि पहले फैसला लिया गया कि बुजुर्ग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए. राइट. इस फैसले पे आप एक प्रतिक्रिया दो कि आपके हिसाब से पहले क्या होना चाहिए. सर, मुझे लगता है कि पहले जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं उनको पहले वैक्सीनेट करना चाहिए. जी, बिल्कुल, गुड आइडिया. सो मुझे और भी लगता है कोई जिसको पहले वैक्सीन की इच्छा है उसे वैक्सीन देना चाहिए, उसके बाद उसको कैटेगराइज करना चाहिए. जी, जी, बिल्कुल. और भी कोई, और इसको डिस्कस करते हैं अपन. बड़ा मजेदार है. ये एग्जांपल ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ये वाला वैक्सीनेशन वाला. एक आध और कोई पर्सन अपना प्रतिक्रिया देते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको. मिस्टर भाविक ने कहा दोज हु हैव मोर रिस्क. ठीक है. तो ओके, हमें पहली चीज तो समझ आता है कि एक समस्या के कई समाधान होते हैं. राइट. अभी हमने जैसे वैक्सीन को डिस्कस किया, और आप तीनों की अपने अपने एंगल से बिल्कुल सही हो. गवर्नमेंट भी अपने एंगल से बिल्कुल सही थी. चौथा एंगल है वो कि बुजुर्गों को पहले करते हैं. इसमें कोई पांचवा एंगल भी हो सकता है. राइट. तो इससे हमें समझ आता है कि समाधान करने के लिए सबसे अगर समाधान हो सकता है, तो उसके लिए एक तरफ चलते हैं कि बुजुर्ग की सिचुएशन क्या है. तो बुजुर्ग घर में बैठा हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन सेफ है. राइट. और बुजुर्ग सबसे, आपके घरों में बुजुर्ग जो बैठे थे, सबसे ज्यादा डर उनको किसका था? आपका था ना, कि आप बाहर जा रहे हो यार, आप लेके आ जाओगे. जैसे ही खुला था लॉकडाउन, तो बुजुर्ग को तो आपसे डर लगने लग गया था.
तो एक तरफ है कि उसका डर भगाया जाए, ये गवर्नमेंट ने सोचा। दूसरी तरफ अगर सपोज आप जो बाहर जाने वाले इंसान हैं पहले वो वैक्सीनेट हों, तो बुजुर्ग का डर वहां से भी भागता ना, कि यार चलो आप वैक्सीनेट हो गए तो बीच का एक दीवार एटलीस्ट बनी है जो मुझे डर नहीं हुआ। क्योंकि दूसरी तरफ वैक्सीन के साथ साथ कई इश्यूज भी थे कि जहां पे कल्पेबल लोग ज्यादा लाइक जल्दी इन्फेक्ट हो रहे थे, जो वीकर थे। तो वीकर को पहले वैक्सीन, बुजुर्ग वीकर में आते हैं तो उनको पहले वैक्सीनेट होना। दूसरी तरफ कोई ये भी कह सकता है कि पहले तो 12वीं के बच्चों को वैक्सीनेट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एग्जाम देने बाहर तो आना ही पड़ेगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब बहुत एंगल हो सकते थे इस चीज के। आज भी 12वीं के बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं, बिकॉज वो 17.5 साल के होते हैं ऑलमोस्ट। कुछ कुछ 18 हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 17.25 17.5 ऐसी उम्र होती है उनकी। तो वो उनका 12वीं के इम्तिहान सिर पे आने वाले हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, राइट। सो इसके मतलब आयाम बता रहा हूं, मतलब कई कितने तरह के एंगल हैं जिनमें सोचा जा सकता है। लेकिन इसको बेस्ट होता है कि कागज पे इसके बाद वर्कआउट किया जाए, जिसको हम आई डोंट नो, गेम थ्योरी में किसी का इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा उसको बोल सकता हूँ। जॉन नैश ने बड़ा प्यारा एक सिस्टम बनाया था गेम थ्योरी, जहां पर ऐसे फैसलों में हर फैसले को लिखा जाता था, उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखी जाती थी और पूरा मैथमेटिक्स चलाया जाता था, जिसके बाद आता था कि क्या होना चाहिए। सो टिपिकली डिसीजन मेकर्स एट दिस कॉम्प्लिकेटेड लेवल हैव टू वर्क विद गेम थ्योरी। लेकिन गेम थ्योरी इतनी सिंपल नहीं है। स्टैनफोर्ड से जो गेम थ्योरी के दो कोर्स थे कि ये मैंने बहुत टफ थे, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद इट वाज टफ पूरा एसिमुलेट करना। मतलब फॉर्मूला रटना आसान है, लेकिन एसिमुलेट नहीं होता आसानी से, और अप्लाई तो करता ही नहीं, बंदा सीख लेता है और उसके बाद साइड में रख देता है, जबकि ये तो रोज अप्लाई होने वाली चीजें हैं। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन होगा? नहीं तो मैं डॉक्टर निर्मला जी का आंसर एक बार बताता हूँ। हाउ यू सी दिस, राघवन जी, कैन यू एलैबोरेट आप जो पूछ रहे हो? मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स और ब्रिंग इंटरेस्ट इन यंग माइंड्स, बता रहा हूँ। हाउ यू सी दिस पूछ रहे हैं राघवन सर, एग्जैक्टली क्या आप पूछना चाह रहे हैं मेरे को बताएंगे तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा। हेलो राघवन, हाउ यू सी दिस आपने जो पूछा उसका मुझे थोड़ा समझा देंगे? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप एलैबोरेट कर दीजिएगा। जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो प्रोफेसर स्वाति रिंगे, डॉक्टर निर्मला गुप्ता जी ने पूछा है कि इंटरेस्ट बच्चों में लाना, उनको मोटिवेट करना, तो इसके बारे में, और इंटरेस्टिंगली इसका आंसर भी एम्पैथी में है। उनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा बच्चे के साथ बैठकर? Hello, sir. There might be some network issue at sir's side. We'll wait a while. हेलो Hello. हाँ जी, कुछ इंटरनेट इशू आ गया था और ज्वाइन हो गया हूँ। हाँ, तो बच्चों में इंटरेस्ट लाने के लिए क्योंकि इतना हम समझ के चलें, दो चीजें, दो तरह के बच्चे रहेंगे। एक है जो सिर्फ एक डिग्री लेने आए हैं, उनका इंटरेस्ट किक ऑफ करना है तो हमें नैरेटिव्स का इस्तेमाल करना होगा।
नैरेटिव वही होता है जिस तरह मैंने किया कि लाइव एग्जाम्पल से कोई भी इंस्पायर होता है, असली में क्या हुआ, उसने कैसे किया। हम जब भी मतलब एक इंजीनियर का भी लाइक प्रारूप बता रहे हैं या कुछ उससे रिलेटेड चीज बता रहे हैं, तो किसी ने कुछ यूज किया होगा ना उसका। तो अगर उनको हम उससे कनेक्ट करा पाए, उस घटना से कनेक्ट करा पाए, तो बच्चों का इंटरेस्ट जागता है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज मेरे को एक प्रोडक्ट डिजाइन का बोलना है लोगों को, और मैं बोलता हूँ कि चलो हमारा, जब हम किचन में दूध रखते हैं, दूध उबलता है, तो उसको कई लोग फूंक मार के नीचे गिरा करते हैं ताकि वो और उबलता रहे थोड़ी देर, राइट? ऐसा करते हैं लोग, फूंक मार देते हैं उस पर। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों को बोलूं कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई एक उपकरण बनाइए, ठीक है, तो बच्चे घर गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, और अगले दिन आ गए और कुछ आपको सबमिट कर दिया, असाइनमेंट आपने दिया था, कॉपी कर करके एक बंदे ने किया, दो बचे सबने कॉपी कर दिया। ऐसे ही होता है मैक्सिमम। अब इसको दूसरी तरह से मैं समझाता हूँ, और ये सच्ची घटना के बेस पे बता रहा हूं मैं। आई थिंक 3 या 4 दिन पहले चंडीगढ़ के पास के गांव में एक लेडी है जो दूध उबाल रही थी। हर रोज जैसे वो करती है कि फूक वूक मार देती थी, तो वो नीचे हो जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद ही गैस बंद करती थी, तो बार बार फूक मार मार के उसको गर्म करती रहती थी। उस दिन उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। उसका 6 साल का बच्चा एक स्टूल लेके आया, स्टूल पे चढ़ा दूध के पास, उसने एक पाइप लिया, पाइप मतलब स्ट्रिपर, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से उसने फूक मारनी शुरू करी। फूक मारता गया, दूध बैठा, फूक मारता गया, दूध बैठ रहा था, बैठ रहा था, बैठ रहा था, फूक मारता गया बच्चा। फूक मारते मारते उसकी सांस भर गई, और जैसे बच्चे होते हैं उसने सांस ली उसी पाइप के थ्रू। वो गर्म दूध उसके लंग्स में चला गया, और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना पड़ा। 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। ये बताने के बाद अगर मैं बच्चों को बोलूं कि यार डिजाइन करो यार कुछ, ये बच्चा बचना चाहिए था, मुझे लगता है कि कम से कम ज्यादा बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है? अगर हम प्रॉब्लम देते हैं क्लास में, क्यों सॉल्व करनी है उसको समझाना भी तो पड़ेगा, ये जरूरी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मतलब बच्चों को कनेक्ट करने में ये दोनों एग्जाम्पल्स का डिफरेंस। पहली बार भी मैंने सेम प्रॉब्लम दी थी, बट विदाउट ए नैरेटिव, विदाउट ए स्टोरी। स्टोरी बताती है कि ये जरूरी क्यों है। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, जैसे पार्किंसंस वाले एक प्लेट से खाना खाते हो। पार्किंसंस आप जानते हो ना, जिनका हाथ ऐसे 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 हिलता रहता है ऐसे, तो उनका, हम कहें अगर किसी बच्चे को यार मतलब एक प्लेट बनानी, यार पार्किंसन वाले लोग जो है वो खा पाए, कुछ नहीं समझ आएगा बच्चे को। उसको एक वीडियो दिखाइए पार्किंसन वाले का, उसकी मुश्किलों का एक वीडियो दिखाइए, जब वो कांपते हाथों से एक चम्मच में पोहे भर रहा है और उससे भरे ही नहीं जा रहे, तब आपको प्रॉब्लम समझ में आती है। फिर आप बोलो कि यार इसके लिए कुछ बनाओ भैया, ये आदमी तो खाना ही नहीं खा पा रहा है। सो इस तरह थोड़ी मेहनत है और वन टाइम मेहनत है, कनेक्ट कराना बच्चे को कि कर क्यों रहा है वो। बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है उसको कभी समझ नहीं आ रहा पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो कर क्यों रहा है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम तो एक पजल की तरह कर रहा है ना वो, कि भाई ये पजल सामने रखा था, इसको बस किसी तरह रीअरेंज कर दो। उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं आता, उसका इंटरेस्ट आता है अगर वो उसको समझ आए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से असली जिंदगी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आप बीच में ले आएंगे क्लास के, मैंने क्योंकि इसका अनुभव किया, मैंने बहुत बच्चों के साथ बैठ बैठ के उनकी परेशानियां समझी हैं। जैसे कोई मेरे पास आता ही होगा रेगुलरली कि कॉलेज की मैं डांस टीम में हूं, और उसमें मैं हमने अभी पेश किया था, और उस दौरान मेरी 6 क्लास मिस हो गई, और टीचर मेरा असाइनमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि डेडलाइन निकल गई, तो मेरे को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो आपने किसी समस्या का हल किया, आपने टीचर से बात करी, कुछ दूसरा मैं वो जगह बनाई कि ऐसा बच्चा हैंडल हो सके। वो है एम्पैथाइजिंग, कि यार चलो ऐसे बच्चे तो आएंगे ही,
कोई इनोवेशन कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में लग गया, कोई बच्चे 4 बच्चे जुड़ के कोई कार बनाने बैठ गए और कोई क्लास नहीं लगा पा रहे, तो क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? क्या हम असाइनमेंट्स को हल्का सा उससे जोड़ सकते हैं, या फिर वो जो कर रहा है उसके लिए उसके अंदर की असाइनमेंट दे दो यार कि भैया तू कार बना रहा है और मैंने तेरे को हाइड्रोलिक सिखाना है, तो तू एक काम कर, उसकी ब्रेक जो है हाइड्रोलिक बनानी है तूने, तो वहां से मैं तेरे को नंबर दे दूंगा। दैट काइंड ऑफ थिंग, कि चल तेरे को असाइनमेंट अलग देते हैं भैया, तू अपने असाइनमेंट पर लग जा जो तुम्हारे काम आएगी, राइट? तो थोड़ा सा एफर्ट हल्का सा ही एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। बच्चा जी आपने, अब मेरे को भी उस एग्जांपल ने रुलाया था जो आप बोल रहे हो, मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है, इसी को एम्पैथी कहते हैं, ये हमारे को तकलीफ होना एग्जाम्पल से। तभी एम्पैथी वर्ड कई बार लगता है कि यार इसमें क्या सीखेंगे, लेकिन एम्पैथी वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर जो चंपारण की प्रॉब्लम उन्होंने गांधी जी को रुलाया है तभी वो गए ये सब सॉल्व करने ना, तो ये सीखना है कि किस तरह हम इन्वॉल्व हो जाएं पूरी तरह से चीज में, सिर्फ उसको एक रोजगार जैसा ना बना के रख दें। सो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी बात है संतोष जी, हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमारा काम यही है। और बच्चों को भी ये सिखाना है कि बेटा जब प्रॉब्लम आ जाए तो सब छोड़ दे, सॉल्व कर। पढ़ाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, सिंपैथी नहीं। उनका उसके बारे में बताता हूं मैं। पढ़ाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्व करने को रोककर पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाती है। तो ये बच्चे को भी बताना है और हमें भी वो जीना है। मतलब कल को बच्चा कहे कि मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई लेकिन मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो हम कहेंगे बेटा उसी प्रॉब्लम के हिसाब से नंबर दे देते हैं तेरे को, इस प्रॉब्लम के, इस असाइनमेंट की जगह। तो लेट अस मेक ए सिस्टम जहां बच्चे इन्वॉल्व कर सके, हम वो मोटिवेटेड रहते हैं। मेरे बहुत बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते हैं क्योंकि मैं उनको पहले ही दिन, पहले सेमेस्टर के बाद पहले तो टॉपर्स को बुलाता हूँ कि भाई ये इतने नंबर ले रहे हो, इसका मतलब है तुम प्रैक्टिकल दुनिया पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा होता है क्योंकि, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर नहीं आ रहे लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, करते जा रहे हैं। उनका भी ध्यान रखना हमने कि वो फेल ना हो जाए। उनको नंबर नहीं देने एक्स्ट्रा, लेकिन फेल ना हो जाए इतना ध्यान रख सकते हैं ना, कि अगर बच्चा शिद्दत से लगा हुआ है। जी भक्ति जी, आपका वो सवाल है कि एम्पैथी और सिंपैथी। सो एम्पैथी और सिंपैथी में एक बारीक सा डिफरेंस होता है जो कई बार नहीं हम समझते। सिंपैथी होता है इमोशनल हो जाना। तो जैसे हम किसी की डेथ हुई, आप हो सकते हैं हमारे पास दो रास्ते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है हमने बोला कितने अच्छे थे, मेरा तो उनके बिना जी नहीं लगता, मतलब बंदा सामने और रोए जा रहा है और भी कुछ इमोशनल कर रहे हैं बंदे को, बार बार सिंपैथाइज कर करके। सिंपैथी ना पिटी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन एम्पैथी है जब आप उसके घर गए, आपने उसको रोता हुआ देखा, अब आप उसके रोने में शरीक नहीं होना चाह रहे, उसको चुप कराने में शरीक नहीं होना चाह रहे, आप उसमें शरीक होना चाह रहे हो कि जो ये रो रहा है इसके पीछे असली चीज ये है कि कल की जिंदगी को कैसे जीना है। तो क्या आप उसकी कल की जिंदगी में कुछ हेल्प कर पाओगे? क्या आप उसको आइडिया दे पाओगे उसने कल की जिंदगी में क्या करना है? मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे फ्रेंड की डेथ, कानपुर में वो पोस्टेड था कर्नल। तो पहले तो मैंने उसकी बीवी को इमीडिएटली फोन ही नहीं कर पाया, बिकॉज क्या बोलूंगा मैं। करीब 2-3 महीने बाद फिर मैंने फोन किया, शालिनी उसका नाम है, कि शालिनी तुमने कोई रोजगार का कभी सोचा है? तो बोलती है भैया मेरे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आर्मी की लाइफ है, आराम से जी थी, आता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर भी कुछ आइडियाज क्या है? तो करते करते एक शॉर्टलिस्ट की आइडिया की, एक टिफिन सर्विस की, कहती है मैं पूना में जाऊंगी तो वहां हमने घर लिया हुआ, वहां से टिफिन सर्विस का सोच रही हूँ। बिकॉज मैंने कहा इतनी लंबी जिंदगी में कुछ तो करोगे ना, तो टिफिन सर्विस का सोच रही हूँ ताकि मैं बिजी रह पाऊँ, क्योंकि बच्चे तो ठीक है कमा के दे देंगे और काम चलता रहेगा। तो मैंने कहा फिर ठीक है, कानपुर में काम करो ना, 10 बच्चों को टिफिन सप्लाई करना शुरू करो, ताकि तुम यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाओ कि टिफिन में क्या कम और क्या ज्यादा है, और तुम क्या यूनिक कर रहे हो नॉर्मल टिफिन से अलग। तो तुम एक छोटा एक्सपेरिमेंट पहले चालू कर लो, अभी तुम्हारे पास अर्दली भी है सरकारी, तो एक बारी ट्रायल्स करो, ताकि जब फुल फ्लेज्ड कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारे पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि नहीं तुम्हें डर लगता रहेगा।
सो इस तरह है, इसको कहते हैं एम्पैथी, कि मैंने उसको रुलाने में मदद नहीं करनी, कोई फायदा नहीं उसका, ना उसको बार बार याद दिलाना है कि वो कैसा था, बिकॉज उसको पता है कैसा था और मुझे भी पता है कैसा था, उसको ये भी पता है कि हमारे संबंध दोनों के फ्रेंड्स के कैसे थे, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम ज्यादातर सिंपैथाइज करते हैं। एम्पैथाइज का होता है कि इमीडिएटली सोचना शुरू करना कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये है जो बच्चों को भी आदत डालनी है और खुद को भी आदत डालनी है, कि कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सिचुएशन, कैन आई सॉल्व दिस सिचुएशन, और आई कैन जस्ट बिकम बाय स्टैंडर, में बगल में खड़ा होकर बस उसका एंजॉय करो, मतलब एक्चुअली रोना भी एंजॉय करना है सिचुएशन को, जस्ट वी आर पार्टिसिपेटिंग, जैसे फिल्म को एंजॉय करते हैं ना, तो रोते भी हैं फिल्म के साथ, उससे सॉल्व नहीं होता कुछ। अगर फिल्म ने आपको हिलाया, क्या आप वापस आके कुछ करना चाह रहे हो, या बस फिल्म में रो के सेंटी होके वापस आ गए? ठीक है, तो अगर हम इस मोड में रहते हैं तो बच्चा तो वैसे ही जुड़ा रहता है हमारे साथ, मतलब एटलीस्ट मैं फील करता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन काफी बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहता है इसके कारण। वो बताते भी हैं कई बच्चे, मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि मैं जब आया था इस कॉलेज में तो मतलब मैं बहुत अलग दुनिया में था, एक नकली सी दुनिया में, और 3 साल बाद, अभी बच्चे ने बताया, ये उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ही इज वेरी रिच, तो कह रहा है आपने जमीन से जोड़ दिया, अब बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन किसी भी बंदे का मतलब मैं तिरस्कार नहीं करता। जो पहले एज ए रिच पर्सन मेरे को अंदर आदत डली हुई थी कि मैं उनका कोई फिक्र नहीं थी, अब मेरे को हर एक की फिक्र है। सो ये है जो हम भर सकते हैं बच्चों में। जी, जी सर, पायलट प्रोजेक्ट्स हमेशा करने चाहिए, हमेशा एक छोटे स्तर पे ट्रायल करने चाहिए, क्योंकि वहां से हम सीख लेते हैं बहुत चीजें। सो जैसे मैं क्लास में कुछ इजाद करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसमें से 4 बच्चे निकाल के कुछ ना कुछ ट्रायल करूंगा उनके बेस पे। जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो 2-4 बच्चों को अलग करके उनमें एक्सपेरिमेंट करूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मेरे जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनमें कुछ कमी ना हो। तो उनको धीरे धीरे फाइन ट्यून करूंगा, और मैं बच्चों को बता देता हूँ, बेटा ये एक्सपेरिमेंट है, ये फ्लॉप भी हो सकता है, तुम्हारा भी थोड़ा नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा रेपुटेशन का, बट कोई बात नहीं, करना तो है, जरूरी तो करना है। सो इस तरह से हम मतलब एक क्लास को बदल सकते हैं, क्लास बदलेगी तो ऑफकोर्स देश भी बदलता ही है आगे। सो छोटे छोटे लेवल पर हमें चीजें करनी होती हैं। ठीक है जी, I hope empathy is now understood very well also. Yes, sir. हमारी डिस्कशंस में, है Yes, ना? sir. Yes, sir. Beautiful examples, sir. क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूँ कि नैरेटिव के ऊपर कोई चीज नहीं है, जब मतलब इतनी देर भी नहीं लगती, मतलब अब देखो, अब लेक्चर का 1.5 आवर्स था, मेरे को 1.5 आवर नहीं लगा वो चीज समझाने में, इनफैक्ट 1.5 आवर तक मैं क्या बोलूंगा मुझे भी नहीं पता, मैं अननेसेसरी का कागज खूब लिख के, कागज काले करके आपको सुना सकता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा पर्पस जो है वो सॉल्व हुआ, कि मैं करीब पौने घंटे में आपको एम्पैथी डिलीवर कर पाया। उसके बाद थोड़ी देर हमें और लगी उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने में, है ना? तो असली में क्या होता है, इवन बुक लिखने में मेरा यही, मैं मानता हूं कि बुक को मोटा करने की जगह उतना करा जाए जितना जरूरी है, ताकि पढ़ने वाला भी टाइम ना जाया करे। कई बार होता है कोई बुकिंग चीज, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, ऐसे तो 7 हैबिट्स एक्सप्लेन करने 7-8 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्ने में समझ आ जाती है बात, 300 पेज पढ़ के भी वही बात समझ में आती है। इफेक्टिव लेक्चर्स होने ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अननेसेसरी का खूब सारी लाइक थ्योरीज भरते रहे, उससे अच्छा इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल भरते रहे तो अच्छा है। और इसके बड़े प्यारी मूवीज हैं, आप तो मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग से हो, मैंने जॉन नैश की मूवी देखी है, और जितने भी हमारे रामानुजम की मूवी आई थी उसको देखा, स्टीव जॉब की, मैंने हर एक की मूवी देखी है इनमें से, वॉल्ट डिज्नी की मूवी देखी, ये रे क्रॉक की मूवी देखी, सारी मूवीज देखी, उनमें से सीखा, उसमें से फास्टर समझ आती हैं बातें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखती है सामने। तो ये एक तरीका है, अगर बच्चों को भी सिखाएं, उसमें बच्चा तो खुश होगा, अच्छा मूवी देखने बोल दिया। तो अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और आपको लगता है ये किसी मूवी में अच्छी एक्सप्लेन हुई है, या एटलीस्ट कुछ आइडिया लगेगा बच्चे को, तो उसको बोलो यार ये देख के आओ। तो एम्पैथी से समझाना है तो उसको बोलो कि भाई तुम गांधी मूवी तो देखो एक बारी। मैंने डिस्कशंस करी है बच्चों से, भगत सिंह वर्सेस गांधी, या वो क्या है उनके जो किलर हैं जिन्होंने गांधी जी को मारा था,
नाथूराम गोडसे। हाँ, नाथूराम गोडसे। तो मतलब एक बच्चा है, मतलब अच्छा बच्चा है, आया बोला मैं सर बुक्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, कौन सी बुक पढ़ोगे? बोले सर नाथूराम गोडसे की बायोग्राफी। मैंने कहा फाइन, तो एक सजेशन है। मैं बोला तुमने गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ ली है ना? कहते नहीं सर, वो तो सभी ने पढ़ी होती है ना, तो मैं अलग कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा पढ़ो नाथूराम गोडसे की बायोग्राफी, लेकिन गांधी जी की बायोग्राफी के बाद, ताकि तुम्हें उनके कहे पॉइंट वर्सेस ये समझ में आए कि वो किस दुनिया से आ रहे थे, तो उस दुनिया का अंत हुआ। ठीक है, एक सोच का अंत है, एक मैं आदमी की मौत नहीं। तो वो बच्चा सर, मेरा बहुत कहना अच्छा है सर कि हर एक की जीवनी से सर पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना चाहिए, जी जी बिल्कुल, नेगेटिव पॉइंट्स को मत हाँ नहीं लेना चाहिए सर, राइट। क्योंकि तो नाथूराम गोडसे भी उनके भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सर, आई थिंक में भी। बिल्कुल जी, तो मैं यही बोला कि गांधी जी के बाद पढ़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनकी जीवनी से सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलेगा। उसके बाद आप उनको पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कॉन्टेक्स्ट, है ना? नहीं तो एक तरफा मुकदमा हो जाता है। तो बेस्ट है, क्योंकि गांधी जी ने तो नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो वहां से तो कोई पढ़ने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पता चलेगा वो किस जिंदगी को जी रहे थे। तो तब नाथूराम गोडसे के पॉइंट समझ में आएंगे, या ये समझ में आएगा कि उनका पर्सपेक्टिव है एक सिर्फ, राइट। सो दोनों पार्ट समझने जरूरी हैं, क्योंकि उसकी जीवनी में गांधी जी का जिक्र होगा, गांधी जी की जीवनी में उनका जिक्र नहीं है। तो इधर से शुरू करके फिर उधर जाना, तो वो माना और उसने पढ़ा भी। और उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि इंडिया के काफी बच्चे डिस्कनेक्टेड हैं इनके प्रिंसिपल से, गांधी जी के, जो जबकि दुनिया भर के लोग उससे आज भी सीख रहे हैं और उसके बेसिस पे दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें वो पहले सीख लेना चाहिए, बाद में सीखते रहें। सीखने की तो कोई अंत नहीं है ना? इस तरह ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक के। तो जहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से जुड़ रहा है, तो किस तरफ से जुड़ रहा है वो समझना होगा। बिल्कुल जी, पॉजिटिव पॉइंट्स। जी थैंक यू सरिता जी। सो एनी अदर क्वेश्चंस? जी नहीं तो मैं एक जस्ट उसी जो मैकडोनल्ड वाला एग्जांपल का जस्ट एक वीडियो का एक पार्ट रह गया था, वो दिखाकर इसको फिर क्लोज कर सकता हूँ। बट कोई क्वेश्चंस होंगे उसके बाद भी। मैं इसको जरा चालू करता हूँ, एक बारी कोशिश करता हूँ कि अगर ये दिख जाए। पहले मैं शेयर करता हूँ जी। ठीक है, दिख रहा है जी? कैन यू सी इट? Yes, sir. ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं, और इसके अंत में एक और खास चीज होगी। ये ऑटोमेशन की क्रॉप है जो बन रहा, उस दिखा रहे हैं अपना रेस्टोरेंट कि हम कैसे बनाते हैं बर्गर। अब आइडिया सर उन्होंने, जिसके मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाए थे। बताया कि
मैक्सिमम तीन ही चीजें बिक रही थी। इन्होंने फोकस किया कि अपना मेन्यू छोटा करो ताकि स्पीड आ जाए। एक चलते हुए काम को उन्होंने बीच में रोक कर फिर से डिजाइन। ये देखिए, अब ये है जो किचन बनाया। एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाया सारा, जो उनका रेस्टोरेंट में था, यानी कि मशीनों के साइज के हिसाब से, और इनको बोला कि वैसे ही करो। तो विदाउट इन्वेस्टिंग इन ऑलवेज मेकिंग द लेआउट, उन्होंने एक टेनिस कोर्ट पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बैठकर। इसको कहते हैं सिमुलेशन, और ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है टू, स्पेशली फॉर सर्विस इंडस्ट्री। आप एक क्लास को, एक लेक्चर देने के सिस्टम को भी रिडिजाइन कर सकते हो अगर चाहो, ऐसे ही। जी। तो ये वीडियो देखकर, मैं अपना तो शेयर कर सकता हूँ, ये वीडियो देखकर आई के लाइक डिजाइनिंग का ये एक मेथड मेरे उसमें नहीं था कि सिमुलेशन भी एक तरीका है। वहां पे मैंने जब देखा कि यार एक टेनिस कोर्ट पे एक सर्विस डिजाइन का पूरा काम हो सकता है बिना एक भी रुपए के इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ वक्त और लोग चाहिए। तो इसी तरह सपोज मैं क्लास में एक सिस्टम बना रहा हूँ कि इस तरह से लेक्चर्स होंगे या इस तरह से उसके असेसमेंट होगी, इस सबको सिमुलेट कर करके देखा या समझा जा सकता है। तो सिमुलेशन एक तरीका है जिसमें कि हम जो भी चीजें करना चाह रहे हैं उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये पायलट के पैरेलल एक और तरीका है। इंस्टेड ऑफ डूइंग पायलट, एक प्रोटोटाइप की तरह उन्होंने इसको समझ लिया। राइट जी? हेलो? Yes, sir. जी। Yes, तो sir. अब कोई आखिरी सवाल? हाँ जी, जी मैम। हेलो? कुछ
कह रहे थे आप मैडम? No, sir, you continue. जी जी। सो कोई लास्ट क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में होंगे, अदरवाइज मैं मोरलेस दीज आर डन। मैं डिजाइन थिंकिंग के अलग अलग टेक्निक्स दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इस स्टेज पर वो रेलेवेंस है, बिकॉज आपके बचे हुए लेक्चर्स में वो सब आएगा ही आएगा। ठीक है, एम्पैथी को लाइक एक एम्पैथी का एक हम वो देख सकते हैं जस्ट, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है। So, जनरली लोग एम्पैथी मैप यूज करते हैं, वैल्यू कैनवस थोड़ा हुआ है आई लेक्चर में करा, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस या एम्पैथी मैप। अगर किसी और में कवर हो रहे हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए ना, फिर वो उनका अपना बिल्डअप होगा जो भी देंगे, नहीं तो मैं समझा देता हूँ जी। चलो मैं इसको बताता हूँ। सो लेफ्ट में आप देख रहे हो कंपनी है जो वैल्यू प्रपोज कर रही है, और राइट में कस्टमर है, इसीलिए उसमें इंसान की शक्ल बनाई है और सामने प्रेजेंट बनाया है, गिफ्ट बनाया। बेसिकली ये समझ लो कि उन्होंने ऑफरिंग बनाई है। ठीक है, सो कस्टमर की 3 चीजें लिस्ट करी जाती हैं। एक तो पेन, उसकी तकलीफें क्या हैं, उसका जॉब, वो कर क्यों रहा है ये चीज, उसके गेन्स इससे। फॉर एग्जाम्पल हम तो उसका जॉब क्या है कि उसको एक डिग्री लेनी है, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन लेनी है, एक स्किल लेना है, ये उसका जॉब है, राइट। अब उसके गेन्स क्या होंगे, उसको नौकरी मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, वो गेन्स है। उसके पेन्स क्या है, वो कहता है यार कि मेरे मन में कुछ चीजें थी पढ़ने की, वो है नहीं इसमें, कुछ ऐसी है इसमें जो मेरे मन में, तो ये मेरा पेन है। या फिर और कई चीजें पेन हो सकती है, कोई कहे कि सुबह यार 9 बजे उठ के कंटिन्यू सारे लेक्चर लगाना नहीं मैंने सोचा हुआ था, तो ये एक पेन है। हमें देखना है कि हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, राइट। सो इस तरह कई पेन होते हैं बच्चे के। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने कई पेन सॉल्व करने की कोशिश की कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी दो उसको, इलेक्टिव्स दे दो, कि वो कुछ चीजें कोर सब्जेक्ट को छोड़ के फिर बच्चों को स्विच कर सके, कोई और चीजें ले सके, यानी कि इंजीनियरिंग के साथ साइकोलॉजी भी ले पाए, ताकि एक अलग तरह का इंजीनियर तैयार हो, और हर इंजीनियर अपने एक दूसरे से अलग हो, ना कि सारे सेम मोल्ड में से निकले हुए। तो कंपनी या सपोज इस केस में यूनिवर्सिटी, तो उसने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐसी बनानी है जिससे कि एक तो कस्टमर जॉब अचीव हो, पेन रिलीव हो, और गेन जो वो चाह रहा है वो मुझे क्रिएटर है कि प्लेसमेंट सर्विसेज भी साथ में दे दी कॉलेज ने, अगर इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दिया, राइट। सो पेन रिलीवर है कि भाई अगर तुम्हारे टाइमिंग का इशू है तो तुम इस लेक्चर को ऑन में देख सकते। देखने के बाद तुमने 3 सवालों के जवाब देने होंगे जो वीडियो के अंदर आए हैं, जो हम नहीं बताएंगे कहाँ पे आए, तुम्हें पूरा सुनने के बाद वो 3 सवालों का जवाब दे दोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि तुमने वीडियो अटेंड कर लिया, तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी। सो दैट इज अ पेन रिलीवर, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट्स सर्विसेज, उसको डिग्री और क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ डिग्री और क्वालिफिकेशन बनाई जा रही है और फाइन ट्यून करी जा रही है ताकि वो कस्टमर्स की नीड को भी मीट करे, इतना भी खलारा ना डल जाए कि समेटा ना जाए, तो इलेक्टिव्स के थ्रू मैनेज हो जाए, यानी कि डिग्री एक ही है लेकिन उसमें 4 इलेक्टिव्स आ गए, सो स्पेशलाइजेशंस हो गई। ठीक है, तो ये होता है। मतलब अब इसी की जगह अगर मैं एक कार बायर को रखता हूँ, तो कार बायर की अपना जॉब क्या है कि वो कहेगा मेरे कार खरीदनी है क्योंकि मैं बस में जाना नहीं चाह रहा हूँ, वो पेन है उसका। उसका जॉब क्या, मेरे को यहाँ से ऑफिस जाना है, कभी कभी फैमिली को लेके घूमने जाना है, तो गेन क्या, स्टेटस का गेन हुआ। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो उस रिक्वायरमेंट में होगा कस्टमर का जॉब ये भी हो सकता है कि मेरी फैमिली 4 लोगों की है, तो मुझे 4 लोगों वाली कार चाहिए। उधर जो कंपनी के प्रोपोजिशन में हो सकता है 4 लोगों की नहीं, सेडान हो, बड़ी बड़ी, मतलब 6 सीटर 8 सीटर है, तो वो कंपनी इसकी नीड को मीट नहीं करेगी, लेकिन कोई और कंपनी उसको मीट कर देगी। कोई कस्टमर चाहेगा कि इकोनॉमिकल हो, यानी कि फ्यूल सेविंग हो, कोई चाहेगा कि लग्जूरियस हो। सो हर कंपनी का अलग कस्टमर इसी तरह बनता है, और हर कस्टमर के लिए अलग कंपनी ही मैचअप होती है। सो ये है वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस की है, या इधर इसकी नीड और उधर उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये यही एम्पैथी को लाइक
फॉर्मली अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये एक तरीका है वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस। इससे थोड़ा इलैबोरेट तरीका ये एग्जैक्ट एग्जांपल कार वाला भी है। तो एनीवे मतलब सर्टेन कस्टमर लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसको ये जॉब्स हैं, ये पेन्स हैं, ये गेन्स हैं, और टोयोटा की ऑफरिंग उसको मैच नहीं हो रही, इसलिए मिसफिट लिखा है सेंटर में। सो फिटमेंट देखनी होती है इसके बाद कि वेदर इसकी नीड्स मेट हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, टोयोटा इस वाले पर्टिकुलर कस्टमर के लिए टोयोटा फिट हो पा रहा है, और उस कस्टमर जो पहला हमने देखा था उसको टेस्ला फिट हुआ ना। हर कस्टमर के हिसाब से कोई ना कोई कंपनी फिट हो पाती है, या उस कस्टमर अगर फिट नहीं हो पा रही तो कोई नई कंपनी बन सकती है जो उसको फिट करे। तो नई कंपनी इस टाइप के कस्टमर को फिट हो पा रही है। सो दैट्स अबाउट इट। ये मेरे कुछ कनेक्ट्स हैं, कोई कनेक्ट होना चाहे तो जरूर हो सकते हैं, चाहे लिंक्डइन पे या कहीं भी। फोन नंबर है इफ यू वांट टू गेट इन टच। रेस्ट एनी क्वेश्चंस अगर और है तो जरूर। शो नहीं हो रहा है जी सर, आपका लिंक्डइन वगैरह सब शो नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये लिखा हुआ। अच्छा, अभी कुछ नहीं शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा। लिंक्डइन पे वैसे नाम से भी अगर ढूंढेंगे तो इजीली मिल जाएगा, विनीत राज कपूर करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी, वेलकम जी। एंड जरूर मैडम मेरे को भी फीडबैक शेयर कीजिएगा। कोई मेरे जानने लायक चीजें भी होंगी उसमें, ऑफ कोर्स बेटर कैसे कर सकता हूँ, कोई फीडबैक देना भी चाहें तो अभी दे सकते हैं। I would love to receive a feedback. There are so many feedbacks in the chat box from the participant side. People are saying that all the examples which you gave, the case studies which you have shown were fantastic. Yes, people are saying very nicely explained, awesome session. And yes, all the discussions were very insightful. Those are the comments. Actually, I'm reading the comments for you. Yes, then explanation and examples are so beautifully narrated. One of the participants is saying. Yes, any participant, if you want to give feedback by unmuting yourself, you are welcome. Any participants want to speak? Hello, ma'am. Hello. Yes. Hello, जी. Sir, it was wonderful session. Actually, कभी कोई मातृभाषा हमारी राष्ट्रभाषा में जब कोई बोलता है तो वो बहुत जल्दी टच होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, काफ़ी सारी चीज़ें आपने समझाई, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे। जब बातें करना और एग्जाम्पल देना उसमें बहुत फ़र्क होता है। जब कोई इंसान एग्जाम्पल से समझाता है तो चीज़ जल्दी गले उतर जाती है हमारे। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। जी, थैंक्स जी। यस सर, आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी है, तो हमें भी कभी सोने का मौका नहीं मिला। यू वाले करे, वाह क्या बात है, क्या बात है। इट वाज वेरी नाइस। अरे थैंक्स सर जी। अगर एक बारी आई डोंट नो जनरली होता है कि शबनम जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? No, sir. The session was very nice. We all enjoyed it. Thank you. Yes, Shabnam ma'am. Are you going to end the session? Yeah, sir. I don't think many of you presenting. I think from the airport, I guess. है ना sir? जी जी। He is on his way to Kerala. एयरपोर्ट से मैं जस्ट पहुंचा यहाँ और अभी खाना खाने जाना है, मैंने ये खत्म करके जाऊंगा खाना। Thank you so much, sir, for all your efforts. Thank you for considering our session and for not cancelling things. Thank you so much, sir.
and we look forward for your session tomorrow at 11:15. Sure. Thank you so much, Definitely. sir. Thank you so much for considering our session, for not canceling from and taking out time from your busy schedule. Thank you so much. थैंक्स सर जी. अगर मेरे को फीडबैक्स का अगर आई डोंट नो मीटिंग अगर सेव होती हो तो जरूर भेज दीजिएगा. Sir, the Rest recording is is fine. saved. I will surely send it to ठीक है. you. Great. Thank Thanks a you. lot. जी. Okay. Over to you, Bhakti ma'am. Okay, जी. Yes. Thank you. Yes, sir. Before we end, I wanted to say something about the session. As we all know, that empathize is the first stage of design जी. thinking. Yes. So basically, it is a deep understanding. What I got to know from your session, I am trying to put here in front of everyone. It's basically a deep understanding of the problems and realities, as sir said, that how you understand others' problems. It is not sympathy, it is empathy. So once we understand the difficulties which people face, and their needs and their desires, then based on which we can design the solutions, we can give the solutions to their problems. So sir, all the examples, all the case studies which you gave were very, very beautiful. And this was the wonderful session which I attended, and thank you for the beautiful insights, the examples. And I really hope we will again get the opportunity to hear from you in the future. Definitely tomorrow we are going to again hear from you. But AISSMS COE will again be looking forward for the same association with you, sir. And thank you so much, sir. Thank you so much for the session. Sure जी. Thanks a lot. And I hope कि कभी physically भी आकर ऐसे sessions दे पाएं. अभी तो Yes, सब sir, online sure. होता है. Offline, yes, तो- yes, sir, sure. Because offline का एक अलग connect होता है. ऑनलाइन में जुड़ने में बहुत टाइम लगता है, जैसे हमारे में भी टाइम लगा. एंड अब हम जुड़ गए हैं, लेकिन शुरू में टाइम लगा. Yes, है ना? sir. Yes. तो ऑफलाइन का अपना मजा है पूरा. Right, sir. जी जी. Yes, thank you so much, ठीक है sir. जी. Yes, for all the participants, we have already shared the feedback link with you all. Kindly fill your feedback and Bhakti ma'am, yes, ma'am. please check the settings of feedback form. Uh, Kshitij, if you can hear me, please check the settings. Santosh sir, you can check now. Things are open now. Okay, thank you, sir. We'll meet tomorrow again at 11:15 for sir ka session, and dear participants, we'll be meeting tomorrow at 9:30 sharp. yes, Shabnam ma'am, the feedback form is opening. It is